friends, while continuing with our IELTS series, let's discuss the third type of writing task 2. The third type we are going to discuss about is, do you completely agree or disagree? As we had already discussed the two types of question that could come in your exam of the task 2, that our first one was discuss both the views and give your opinion, and the second one was discuss both the views. And today we are going to discuss the third type, that is we are going to discuss whether you agree or you completely disagree. You have to go with one side, or you have to write down completely all the reasons should be on one side, whether you agree or disagree. So let's discuss. There is a small difference that you have to write down the essay, and let's discuss on that how you have to write down the thesis statement, opening statement. And there is a difference also, like BP1 and BP2. Earlier we had done like two reasons were kept in the this one BP1 and two in the BP2, and now it's a type in which we have to write down the two reasons in the BP1 and the third reason in the BP2 with an example. Three reasons are enough for such a type of question, and you can go on both the sides, whether you can agree with this statement or you can disagree with this statement. First you will read the question with a full concentration so that you can think upon which type of question is this, and you also have to think over the reasons, what could be the reason I could write down. So let's discuss about this. Let's start, students. As the question is, fast food is a part of life in many places. Some people think this has bad effect on lifestyle and diets. Do you agree or disagree? Means you have to write on one side. आपको या तो agree करना है इसके साथ या फिर disagree करना है statement के साथ. क्वेश्चन क्या है कि जो फास्ट फूड है हमारी लाइफ में बहुत जगह हम देखते हैं, ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है. तो कुछ लोग क्या है सोचते हैं कि इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हैं हमारे लाइफस्टाइल और डाइट्स पर. सो व्हाट डू यू थिंक? आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे बैड इफेक्ट हैं लाइफस्टाइल पर और डाइट्स पर, या फिर आप इस चीज़ के साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं. तो मैंने इस चीज़ के साथ कंप्लीटली एग्री किया है. तो लेट्स डिस्कस कि ये कैसे किया जाता है, कैसे आप इसको लिखेंगे. जैसे आप स्टार्टिंग कैसे भी कर सकते हैं इसको पैराफ्रेज करने के लिए. लाइक मैंने की है, इन दिस कंटेम्प्रेरी एपोक ड्यू टू हैक्टिक शेड्यूल पीपल आर कंज्यूमिंग फास्ट फूड इन वेरियस प्लेसेस. सम पार्ट ऑफ द people consider this as detrimental. Detrimental is a word that has a bad meaning, and this is a good vocab that we can use. Impact on the lifestyle and eating habit. I completely agree. तो मैंने इसके साथ क्या कर दिया, completely agree कर दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया multifarious reasons so as to add a good vocab, है ना. Multifarious reasons discussed in the impending paragraphs. You can use this word impending. Fine. Now come to the BP1. BP1 के लिए वही मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट टू कमेंस विद करके पैराफ्रेज किया पहले क्वेश्चन को. Food is a basic necessity of all living creatures, but in this prevalent epoch, a human is reliant on fast food cuisines to consume rather than homemade food, providing deleterious for health, lifestyle, and eating habit due to plethora of reasons. So first and the foremost reason, it could not fulfill the requirement of micronutrients. Obviously micronutrient हमारी बॉडी के कंप्लीट नहीं होते अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं. तो इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है टू इलेबोरेट करके. सेम स्ट्रक्चर वी कैन फॉलो. ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट्स हम वही ले सकते हैं, टू कमेंस विद फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीजन, टू इलेबोरेट, टू इलूसिडेट. सो हम ये यूज कर सकते हैं. सो ह्यूमन कैन स्टे हेल्दी इफ enrich the body with a balanced diet, but these fast food cannot accomplish that task, as they are cooked only to relish the taste buds, whereas the vegetarian diets could provide the lucrative nutrient, eventually bolstering the health benefits. Bolstering means to support. हेल्थ बेनिफिट्स हमारे सपोर्ट करते हैं अगर हम न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेंगे प्रॉपरली, वेजिटेरियन डाइट. सो ल्यूक्रेटिव इज ऑल्सो वोकैब वर्ड दैट आई हैव यूज. तो आपको वोकैब जो मैं शॉर्ट्स में डालती हूँ या फिर आपको वैसे भी बताती हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे.
तो आप वोकैब अगर ऐड करते हैं आपके 7 बैंड स्कोर इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंड पॉइंट वर्थ मेंशनिंग। देखो मैंने वही सेकेंड पॉइंट वर्थ मेंशनिंग हियर इज दैट करके, फूड्स आर इंक्लाइनिंग मासेस टूवर्ड्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी इज ऑल्सो अ वर्ड ऑफ वोकैब, है ना, दैट इज इनएक्टिव लाइफस्टाइल। To elucidate, as the name indicate, fast food are food that could be cooked quickly and body will show the symptoms of same, that is consumed consequently. This is also a vocab word. आप शॉर्ट्स इजीली देखिए, उसमें भी आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो देखो मैंने वही सेम रीज़न दे के सेकेंड उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है, फॉर इंस्टांस Mr. David Cooper, editor-in-chief of New York Post, in his editorial column clearly stated that। यहाँ तक आप ये एग्जाम्पल एज इट इज़ अपना लर्न कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे में किसी भी टाइप का ऐसे आए, आप यहाँ तक ये लाइन सेम लिख सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऐसे आपको क्या लगता है कि आप क्या एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया है, द फास्ट फूड्स कंटेन वेरी लेस प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी giving nutrients in comparison to the homemade food. So you can write like this. Now coming on here, now furthermore करके मैंने BP2 स्टार्ट कर दिया है और उसमें भी एक रीजन लिख दिया है, that the fast food are responsible for deteriorating state of the health and are causing diseases वाला मैंने एक दे दिया है रीजन, और इसको मैंने क्या कर दिया है, एक्सप्लिकेट करके मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। द यूसेज ऑफ द हाई कैलोरीज कंटेंट इन द फास्ट फूड कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड आर लीडिंग टू द डायबिटीज एंड हार्ट रिस्क। सो these diseases are having a bad impact on the health of the individual, even ultimately causing death. So ultimately, so these words you can use. Now अब मैंने एक और एग्जाम्पल इसमें भी यूज़ करते हैं। दोनों पैराग्राफ्स में मैंने एक एक एग्जाम्पल डाल दिया है वर्डिंग कंप्लीट करने के लिए। तो ये आप 2 एग्जाम्पल एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। बस उसके बाद में जो आपको डाटा डालना है वो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पुट कर देंगे। जैसे टू एग्जाम्पलीफाई, अब मैंने दोनों जो एग्जाम्पल डाले हैं, अब मैं जा रही हूँ कि एग्री कर रही हूँ मैं इस स्टेटमेंट के साथ कि जो फास्ट फूड है दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल इसी फेवर में डाले हैं। जैसे to exemplify, recent survey conducted by an eminent reporter Mr. Hoke on a group of 1,000 people, 900 amongst them revealed that consuming the fast food consuming the fast food could cause the diabetes to the patients. So this has tremendously increased the number of patients of the diabetes. नाउ कम टू द कंक्लूजन। आप इसको कंक्लूजन को देखो, आपने क्या करना है इस कंक्लूजन में, जो आपने तीनों रीज़न लिखे हैं ना, उन तीनों को आप शॉर्ट में लिख देंगे एनकैप्सुलेट करके। टू एनकैप्सुलेट, अब देखो मैंने इस तीनों रीजंस को कैसे लिखा है। द ईटिंग अप ऑफ द फास्ट फूड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वेरियस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू प्लेथोरा ऑफ रीजंस। पहले मैंने दे दिया है कि मैं किस चीज़ के रीजंस लिख रही हूँ, कि मैं इसके एग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ इस चीज़ के साथ। तो मैंने बता दिया कि मैं एग्री कर रही हूँ। तो फिर उसके रीजंस क्या हैं, एज दीज डू नॉट कंटेन माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड आर मेकिंग पीपल लेथार्जिक, है ना। And next one is, moreover these food contain high amount of fats and carbohydrates leading to the death due to diseases। तो इस तरह से मैंने तीनों रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं छोटे छोटे करके। इसी तरह से आपको ये कम्प्लीटली एग्री और डिसएग्री वाला आपको इस तरह से लिखना है 250 वर्ड्स में कंप्लीट। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।